السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک کی آواز کے ساتھ میں ہوں ناصر ہاشمی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مہنگائی پر، اور مہنگائی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کا ذمہ دار ہم ہمیشہ سے حکومت کو سمجھتے ہیں، اور حکومت ذمہ دار ہے بھی۔ لیکن ناظرین، کیا کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے گہرے بانوں میں جھانکا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب بھی عید تہوار آتا ہے یا رمضان آتا ہے تو ہم کھجوریں اور پھلوں کا ریٹ کہاں لے جاتے ہیں؟ چھوٹی عید پہ چکن اور گوشت کتنا مہنگا کر دیتے ہیں۔ اب عید قرباں کی آمد ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ٹماٹر کا ریٹ کیا ہے، دھنیا کا ریٹ کیا ہے، آلو پیاز کے ریٹ تو آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہم ایسے کیوں ہیں؟ کیوں ہم اپنے بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتے؟ پوری دنیا میں جب بھی عید کا موقع ہو، رمضان ہو، بڑی عید ہو، تو عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ تو بزنس کا وقت ہے، یہ تو سیزن آ گیا ہمارا، ہم اپنے بھائیوں کو لوٹنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ رمضان میں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے عوام سے کہ ان کو کتنی مشکل ہوتی ہے جب جان بچانے کی دوائی بھی ان کو مہنگے داموں لینی پڑتی ہے، اور کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں۔ تاجر رہنماؤں سے بات کریں گے، پرائس کنٹرول کمیٹی سے بات کریں گے کہ وہ کیوں نہیں کنٹرول کر پاتے سارے معاملے کو۔ لیکن سب سے پہلے ہم عوام سے بات کریں گے، آئیے۔ جی ناظرین، اس وقت میں اسلام آباد کی سبزی منڈی میں موجود ہوں، اور یہاں پہ فروٹ سبزی بڑا سستا ملتا ہے۔ کچھ شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فریرہ ذوالفقار۔ اچھا، یہ بتائیں آپ کیا لینے آئے ہیں؟ ہم یہاں پہ فروٹ لینے کے لیے آئے تھے، آڑو، آم، کیلے وغیرہ۔ کیا ریٹ مل رہا ہے اب؟ آم جو ہیں وہ 150 روپے سے کم نہیں مل رہے ہیں منڈی میں 150 روپے کلو ہے؟ بالکل 150 روپیہ، اور آڑو 200 روپیہ۔ اس کے علاوہ کا مطلب جو باقی مارکیٹز ہیں جو شہر کی ہیں وہاں تو ڈبل ہوگی قیمت؟ جی بالکل، اور یہاں پر تو میں نے دیکھا ہے کچھ زیادہ ہی ریٹ زیادہ ہیں یہاں پر۔ ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے یہاں پہ؟ نہیں، بہت کم جگہوں پر کی دو کی نظر آئی ہے، زیادہ تر نہیں لگی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ راحت۔ راحت صاحب، یہ ٹماٹر آپ نے لگائے ہیں؟ ہاں جی۔ تو ریٹ لسٹ نظر نہیں آ رہی، ریٹ لسٹ کہاں ہے؟ ریٹ لسٹ تو آتے ہیں، لیکن یہ ادھر سبزی منڈی ہے نا، یہ یہاں جو ہوتے ہیں نا رات کا مختلف ریٹ ہوتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پہ اگر آپ آج رات کو ٹماٹر لے گا 500 کا پیٹی، کل رات کو ہوگا وہ 1000 روپے کا پیٹی، تو آپ کو جو ہے نا پھر ریٹ لسٹ پر آپ نہیں بیچ سکتے ہو۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر ریٹ لسٹ نہیں لگاتے؟ لگاتے، ریٹ لسٹ لگاتے، مطلب یہ ہے نا، یہ نظر نہیں آ رہی یہاں پہ ریٹ لسٹ لوگوں کے پاس پڑے ہوتے ہیں۔ تو سامنے لگانا چاہیے نا۔ خوب بات یہ ہے نا، ادھر اصل مسئلہ یہ ہے نا، بس آپ کو سمجھ میں نے بتایا نا کہ مثال کے طور پر اگر آج رات کو ٹماٹر 500 روپے پیٹی بک جاتے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ٹماٹر کا پیٹی کل رات کو وہ 1000 کا بک جاتے۔ کیوں اتنا مہنگا؟ ڈبل ہو جاتا ہے اگلے دن ہی؟ یہ تو جس طرح وہ یہ منڈی کا سسٹم ایسی طرح ہے، اگر مال تھوڑا سا زیادہ آ گیا تو ریٹ نیچے آتے، اگر مال تھوڑا سا کم ہوئے گا تو ریٹ اوپر چلی جاتی۔ اس سال کیوں مہنگا ہے؟ پتہ نہیں ہے، بس ہر چیز۔ پچھلے سال یہ آم کا پیٹی جو ہے نا، چونسا آم اور دوسرا آم، یہ 400-300 روپے پیٹی ملتا تھا۔ ابھی اس سال جو ہے نا یہ 1000 روپے، 800 سے لے لو 1000-1200 روپے پیٹی بکتا تھا۔ مائی گاڈ، 3 گنا مہنگا ہو گیا۔ 3 گنا مہنگا ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ؟ محمد بلال۔ دیکھیں، ہم نے ریٹ لسٹ کا کہا ہے تو تب آپ نے جیب سے نکالی ہے اور آپ دکھا رہے ہیں، تو یہ یہاں پہ لگائی کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سر، ہم لگاتے ہیں لیکن کسٹمر جو ہوتا ہے نا وہ اس پہ اعتبار نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مال جو ہے آڑتی آپ کو اس ریٹ لسٹ پہ نہیں دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ 340 روپے جو ہے نا آلو کا ریٹ رکھا ہوا ہے کہ دھڑی جو ہے 340 میں، ہمیں یہاں 340 میں پڑتی ہے، ہم گاہک کو دکھاتے ہیں کہ 340 میں ہمیں یہاں پہ پڑ رہا ہے 5 کلو آلو، لیکن جی ناظرین، یہ دیکھیں کہ یہ ریٹ لسٹ ہے اور یہ یہاں پر نہیں لگی ہوئی، یہ ان کی جیب میں ہے۔ اب یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ گاہک اعتراض کرتا ہے، اب جو یہاں پر ریٹ ہے اسی کے مطابق یہ دیتے ہیں بقول ان کے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ریٹ لسٹ اگر دکاندار لگاتا ہی نہیں ہے یا گاہک اس پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، عوام کو اور ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے؟ یہ صرف سی ڈی اے کو فائدہ دیتے ہیں، 10 روپے لیتے ہیں ایک رسید کا۔ کتنے ٹھی ہیں، 10 آپ کریں تو ہزاروں روپے بن جاتے ہیں، وہ لوگ اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں، اپنا خرچہ بناتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ سی ڈی اے کے ملازم جو یہاں پہ آتے ہیں، جو ان غریب ٹھیے والوں کو تنگ کرتے ہیں، اس سے صرف ان کے گھروں کا پیٹ پڑتا ہے، باقی
दिहाड़ीदार मजदूर का और आवाम का इससे कोई लेना देना नहीं। यानी जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं और ये जो लिस्ट है, ये इसके मुताबिक चीज़ भी नहीं बिकती। नहीं है सर जी, बिल्कुल नहीं लहसुन है, बिकती। इसमें एक किस्म का लहसुन लिखा है सिर्फ देसी। हर नई लहसुन चल रहा है, चाइना चल रहा है, स्टोर चल रहा है, इसमें सिर्फ देसी लहसुन लिखा है। मुझे 11 साल हो गए, मैं यही काम करता हूँ, इसमें लिखा ही नहीं, आप खुद चेक करें। तो यानी इस लिस्ट पे ये मेंशन ही नहीं है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपके सामने गाहक को चेक कराता हूँ, गाहक मानता ही नहीं है। गाहक क्यों नहीं मानता? गाहक कह रहे मुझे इस पे एतबार नहीं, आप दोगे तो मैं लूँगा। मतलब क्यों एतबार क्यों नहीं है? गाहक नहीं मानते इस चीज़ को, मैं क्या करूँ? गाहक नहीं मानता है, वो कहता है ये चीज़ मैंने तो हमारे सिर्फ 10 रुपये देने, रेट लिस्ट रखी, शॉपर में रख देना। गाहक तो हमें कहते हैं यहाँ पे रेट लिस्ट ही नहीं लगी होती। सर, मैं अभी अपने आपको चेक हर कराता बंदे का हूँ। अपना रेट होता है। सुबह से मैंने 10-12 हज़ार सेल की है, मैं अभी आपको गाहक के सामने चेक कराता हूँ, गाहक मानता ही नहीं है। आरती आज अगर 400 रुपये का टमाटर बिका, थोड़ी तेज़ी आई, उसने 1000 रुपये का बेचा, हमने हमारा क्या कसूर है? कसूर तो आरती का, जो वो व्यापारी को फ़ायदा देता है, हमारे जो छोटे लोग तबका है उस पर नुकसान उसको होता है। एक टमाटर 10 किलो, उसमें 2 किलो ख़राब भी निकलता है। हमने तो वो भी मेंशन करके उससे रेट लेना है, वो मेंशन करके ख़राब का भी देते हैं, पेटी के भी देते हैं, हमारा किराया भी, या फिर सैकड़ों के हिसाब से ये कमीशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान साहब, आप क्या कहेंगे? अभी आप आए हैं सब्जी मंडी, क्या रेट क्या है? हर एक का मुख्तलिफ रेट हैं। यानी कोई एक रेट नहीं है? नहीं, रेट एक रेट नहीं है, और दूसरा क्वालिटी बहुत ही लो है। क्वालिटी नाकिस है, रेट भी एक नहीं है, तो यहाँ रेट लिस्ट नहीं लगी हुई? नहीं, किसी के पास नहीं है, किसी के पास रेट लिस्ट नहीं। आपने पूछा नहीं है दुकानदार से कि रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाई? कोई बताता ही नहीं है। उनसे पूछो तो वो कहते हैं लेना है तो लो, वरना सबका अपना अपना रेट है। अपना अपना रेट है। और कितना रेट कितना ज़्यादा है? और क्वालिटी तो नाकिस आपने बता दी, रेट कितना ज़्यादा है? रेट मतलब पहले से जो है ना डबल है। डबल है जी बिल्कुल। अभी आप दिखा रहे हैं रेट लिस्ट, ये तो जेब से निकाली है ना मेरे भाई, यहाँ लगी भी नहीं है। नाजरीन, यहाँ पर हम जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं, किसी ने भी रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई। और यहाँ के ये आए थे सब्ज़ी लेने, फ्रूट लेने, ये बता रहे हैं कि एक तो रेट लिस्ट नहीं लगी हुई, नाकिस क्वालिटी और डबल रेट है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूर सर जी। क्या कहना चाहते हो आप? सर जी, ये पीछे से जो आप बोल रहे हैं महंगाई है, ये महंगाई तो हमने नहीं ला रहा है, कौन ला रहा है? ये पीछे से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए इधर मंडी में, ये ला रहे हैं ना सर जी। अभी अदरक का जाली था 4000 रुपये का, अब ये रेट है ना 6000 रुपये पे रेट चल रहा है ना। तो ये नहीं है, हमारा मसला नहीं है, ये पीछे से महंगाई इन लोगों ने किया है, पहले बात। तो दूसरा बात ये है ना कि सीडीए वाला आ जाता है, गरीब लोग मेहनतकशों को नहीं है, रेड़ा 2000 रुपये जुर्माना डेली कर रहा है ना ये। क्यों जुर्माना कर? जुर्माना इस वजह से कर रहा है कि ये मंडी में रेड़ा आप लोग क्यों खड़ा कर रहे हैं, ठीक है? रेडी की इजाज़त नहीं है यहाँ? रेडी की इजाज़त नहीं, या इस तरह करे ना कि ये रेड़ा मुकम्मल बंद कर देना, फिर हमारे मंडी से जान छुड़वा देगा ना, ठीक है? हम किधर जाए, हम किधर किधर किसके साथ जाए? ना मिनिस्टर को जा सकते हैं, न सीडीए वाले के साथ बात कर सकते हैं। वो रेड़ा सीधा ले जाता है ना, सीधा जाता है उधर थाने के पास, वो रिपोर्ट कर देता है। महंगाई क्यों हो रही है? महंगाई इस वजह से करी जाए, बड़े मगरमच्छ नहीं है, ये करवा रहे हैं ना सर। नाजरीन, इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट अपारा में मौजूद हूँ। एक शहरी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? राशिद अजीज़ मेरा नाम है जी। अच्छा राशिद साहब, क्या कहेंगे कि ये जो रमज़ान जब भी आता है, या छोटी ईद या बड़ी ईद या कोई भी इवेंट हो, तो पाकिस्तान में कीमतें आसमान पे चली जाती हैं। इसका ज़िम्मेदार आप हुकूमत को समझते हैं, या ताजिर बरादरी को, या हमारी आवाम को? आप किसको इसका ज़िम्मेदार समझते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें अवाम भी ज़िम्मेदार हैं, हम लोग ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, इसके अलावा हुकूमत तो वो तो है ही है। लेकिन बात यह है कि जब हमारे ऊपर वक्त आता है, जब रमज़ान में आप देखें कि रमज़ान में जब ईद का सीज़न आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो चीज़ 100 रुपये की है वो 200 में कर देते हैं, जो 500 की है वो 1000 में कर देते हैं। ये महंगाई कौन करता है? ये हुकूमत नहीं करती, ये हम लोग करते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें हम सब इन्वॉल्व हैं। ये एक आर्जी ज़िंदगी है, एक अपनी ज़िंदगी भी है जिसका आपने कुछ करना है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे अमाल मिलेंगे और आपकी मंजिल जो है वो जन्नत होगी। तो लिहाजा मैं आपके तवस्सुत से ये कहता हूँ कि ताजर भी होश के नाखून लें, और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो गरीबों का ख़ास ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? शिराज नाम है जी मेरा। शिराज भाई, आप क्या कहेंगे कि हम रमज़ान आता है तो चीज़ें महंगी, कोई इवेंट आए, छोटी ईद बड़ी ईद, अब ईद कुर्बान की आमद है, टमाटर का आप रेट देख लें, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? सर, इसका ज़िम्मेदार सबसे पहले तो हम खुद अवाम है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर यही है कि एक तो हमारी आवाम जो है उसकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो कोई भी चीज़ जो है महंगी हो रही है तो वो उसके ऊपर इतनी कंसर्न नहीं होती, और जिस भी दाम में उसको चीज़ मिलती है वो ले लेती है। और दूसरा इसके अंदर जो है हमारी गवर्नमेंट भी इसके अंदर बहुत कसूरवार है।
اور जितने भी जो मुनाफाखोर किस्म के तबकात हैं, जितने भी माफियाज़ हैं, ठीक है, वो उन सब के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट किसी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो वो चीज़ें मार्केट में शॉर्ट कर देते हैं और इसकी वजह से महंगाई होती है। हुकूमत की रेट नज़र नहीं आती। हुकूमत की रेट बिल्कुल नज़र नहीं आती और हमारी जो इंतज़ामिया है उसकी रेट नज़र नहीं आती। ये बताएं कि ज़िली इंतज़ामिया के एक्शन तो नज़र आ रहे हैं, परफॉर्मेंस भी नज़र आ रही है, तो फिर भी कंट्रोल क्यों नहीं होता? इसके अंदर जो है ना देखना पड़ता है कि चीज़ें कितनी रियलिस्टिक हैं। अब एक चीज़ की जो पैदावारी कीमत है या जो कीमत ख़रीद है, अगर उससे कम जो है ज़िली इंतज़ामिया रेट दे देगी तो दुकानदार भी उसको नहीं बेच सकेगा। बल्कि हमारे मुल्क में तो कहा जाता है कि जिस चीज़ के ऊपर आपने कमाई ज़्यादा करनी है उस पर टैक्स लगा दें, क्योंकि टैक्स कलेक्शन आवाम से होना शुरू हो जाती है और वो गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाती है। तो ये बड़ा आसान सा फार्मूला, और बल्कि ये जो माफियाज हैं ये खुद ही अपनी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगवाते हैं। जैसे ये आपके जितनी भी आप गवर्नमेंट ने कहा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, तो इससे जो रिलेटेड सीमेंट, बजरी, सरिया, ईंटें, इनके ऊपर जितनी भी टैक्स कलेक्शन होती है वो आवाम से तो हो रही है, लेकिन वो आगे की जो है गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाती है। हम अपने भाइयों को आसानी क्यों नहीं देते? हम अपने भाइयों को आसानी इसलिए नहीं देते हैं कि हमारे ऊपर दुनिया गालिब है। सारी बात हम इदारों पे कर देते हैं, लेकिन हम अपने गिरबान में कब झांकेंगे, हम अपना मुहासबा कब करेंगे? देखिए जी, ये कौम जो है डंडे से चलने वाली कौम है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे पहले हम शॉपिंग करने आते थे लिबर्टी मार्केट में, तो जो हम शॉपिंग करते थे वो कम रेट्स पे करते थे, तो अब जो है वो महंगाई आसमान की तरफ जा रही है। तो मैं समझता हूँ इसका जो बेसिक कसूरवार है वो हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत ने जो ताजरों पे टैक्सेस वगैरह लगा दिए हैं, उस वजह से जो है महंगाई है वो बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, आप क्या कहेंगे, कसूर किसका है? कोई भी इवेंट हो महंगाई हो जाती है, रमज़ान आए तो महंगाई बहुत ज़्यादा, अगर बड़ी ईद है, छोटी ईद है, तो कसूर किसका है? हुक्मरान का है, ताजरों का है, अवाम का है? बुनियादी तौर पे ये है कि लोग जो हैं उनको उनका हक़ नहीं मिलता, उनको अच्छी पेज नहीं मिलती, रोज़गार नहीं है। अब वो जहाँ पे भी दाव लगना चाहते हैं लगाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सारा साल कुछ नहीं करते, लेकिन इन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अल्लाह पे यकीन नहीं है कि रिस्क तो अल्लाह ने देना है ना? बेशक है, अगर वो यकीन हो तो फिर तो कोई भी बुरा काम करेगा ही नहीं कोई भी। लेकिन ये है कि क्योंकि अल्लाह से यकीन हटा हुआ है और चीज़ों के ऊपर यकीन आ चुका, तो इस वजह से ज़ाहिर हर बंदा दाल लगाने के चक्कर करप्शन करता है, जिसका जहाँ पे बस चल रहा है वो कर रहा है। सब्जी गोश्त से महंगी हुई है, तो इसका कसूर हुकूमत का तो है ही, तो ताजरों का नहीं है जो इतना महंगा बेच रहे हैं? ताजर क्या करें, किराया नहीं देना, या तो दुकानें ज़ाती हों तो फिर है ना, दुकानें भी किराए की हैं, घर भी किराए के हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, बच्चे भी हैं, तमाम मामलात हैं। हुकूमत तो कहती है हम रिलीफ ले रहे हैं, अब हुकूमत पेट्रोल पे एक्शन लेती है या टमाटर पे कि इसको कम करें, तो उसका बुहरान पैदा हो जाता है या वो गायब हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? मंडियों को कंट्रोल नहीं कर रहे ना, मंडियों को कंट्रोल करें ना, जहाँ से चीज़ चल रही है। दुकानदारों को आके तंग करना ये फ़ायदा इस मसले का हल नहीं है। हुकूमत ने सस्ता किया ना पेट्रोल, तो मार्केट से गायब हो गया। मार्केट से गायब हो गए, पकड़े ना, यही माफिया है ना, साथ बैठे हुए हैं ना, या तो साथ ना बैठे हो तो फिर तो बात और है। भाई कोई महंगाई नहीं है। जब 100 रुपये किलो गोश्त था तब लोग कहते बहुत महंगाई, बहुत महंगाई। आज 1200 रुपये किलो है, आज भी लोग कहते बहुत महंगाई। ये सब झूठ बोलते, कोई महंगाई नहीं है। यानी कसूर अवाम का है? कसूर अवाम का है, हुकूमत का नहीं? नहीं, हुकूमत सही है, हुकूमत सही है, कोई महंगाई नहीं है, कुछ महंगाई नहीं है। ये कल 2200 का हो जाएगा तब भी ले लेंगे। 2200 नहीं, 4400 का होगा तब भी लेंगे लोग। बाई को डबल करो, 4400 का तब भी लोग लेंगे। जहाँ किसी का हाथ पड़ता है वहाँ तक वो बेईमानी कर लेता है, जहाँ किसी का हाथ नहीं पड़ता वो कहता है वो चोर है, वो चोर है। ये सब ड्रामे, ये सब इनके ड्रामे हैं। इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। इमरान खान कैसे वज़ीर-ए-आज़म? इमरान खान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इमरान खान, मैं उसको गलत नहीं कहता, बहुत अच्छा है। क्या बात है। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने कि कितनी ज़बरदस्त बात की इन्होंने, कि जब 100 रुपये गोश्त था तब भी लोग लेते थे, अब 1200 का है तब भी लेते हैं, कल 5000 का होगा तब भी ले लेंगे। इस वक्त मैं रावलपिंडी के बाड़ा बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग शहरी मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन जी। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? इमरान खान की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन यहाँ इतनी माफिया मजबूत है हमारे मुल्क में कि किसी को वो चलने नहीं देते। जो ताजिर महंगाई करते हैं, सस्ती चीज़ लेके महंगी बेचते हैं, हाँ जी, तो क्या उनका कसूर नहीं है? कसूर तो उसका है। मैं कहना हुकूमत का कसूर है। मैं बेच रहा हूँ, आप मेरे से पूछते नहीं, पूछोगे मैं आपके खीसे में 500 डालूंगा, पकड़, तो क्या पूछेंगे तुम मुझसे, क्या पूछेंगे? ਇਹਦਾ हल कोई नहीं।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਚੁਆਇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ, ਹਾਂਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਚੁਆਇਸ ਕੀ ਹੈ? भाई जड़ी हुकूमत आएगी चोरी आएगी। मैं यूथ तो ला के गिनी जा बादशाह अयूब एक पटो यकीन है मोहजर मजीब टाके मरिया 2 अच्छा पटो 3 जियो लग 4 नवाज शरीफ 5 बेनज़ीर 6 मतलब जरदारी 7 इमरान खान 8। ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੱਲ ਕੇ ਹੱਲ हालत से दिन मुकाता ना भाई असी जुलूस भी करिए ना लोगों ने साड़ी नहीं सुननी। गल समझना कुछ भी नहीं कर सकते सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ तलत। आप क्या कहोगे, महंगाई का कसूरवार कौन है? सर अगर देखा जाए तो महंगाई का कसूरवार आप हुकूमत को ठहराते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिस वक्त इमरान खान साहब ने पीछे पेट्रोल को सस्ता किया, कुछ ऐसे कब्ज़ा माफिया थे कि जिन्होंने पेट्रोल ख़त्म कर दिया, लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कसूरवार कौन है महंगाई का? यही हुक्मरान है जो ताजिर नहीं है। ताजरों को ये कंट्रोल करेंगे ना सर। सर कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, लेकिन क्या हम अपना मुहासबा नहीं करते? क्या हम नहीं सोचेंगे, हमने अल्लाह को जवाब नहीं देना कि हम सस्ती चीज़ कितनी महंगी दे रहे हैं? करते हैं, लेकिन उसके लिए देखें माशरा हुकूमत ये जो रूल्स रेगुलेशन किस लिए बनते हैं, रूल्स रेगुलेशन किस लिए होते हैं? वो ठीक है, वो आपकी बात दुरुस्त है। 22 लाख आर्मी को एक जनरल कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है? रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त रावलपिंडी के राजा बाज़ार में मौजूद हूँ। एक शहरी मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफुर रहमान। आसिफ साहब, आप क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ों से लेकर जान बचाने वाली अद्वियात तक ज़रूरत पड़ने पे इंतहा की हद तक महंगी बिकती हैं, इसकी क्या वजह है? महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, जितनी भी चीज़ें इस टाइम प्रॉब्लम्स हमारे साथ रिलेट हैं, उनकी मेन प्रॉब्लम जो है हमने अपने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। जब बंदा अल्लाह से डरता है तो अल्लाह सारे मसाइल हल करते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सड़कें नहीं बनाई, पुल नहीं बनाया, मोटरवे और मेट्रो नहीं बनाया, उन्होंने बंदे तैयार किए। अफराद की तैयार करने पे जब मेहनत की तो फिर तो पूरी दुनिया मुसख्खर होगी। आज पूरी दुनिया में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा और उन पर जान देने वाले मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफराद पे मेहनत की, और इस चीज़ पे मैं मौजूदा हुकूमत की इस बात को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाऊँगा कि उन्होंने स्कूलों कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों तक ये कुरान का तर्जमा जो है वो लाजिम करार दिया कि खुशाइन बात है। कुरान का तर्जमा जब पढ़ा जाएगा, कोई भी यहूदी कुरान का तर्जमा पढ़ने पे हमें वो आमादा नहीं करेगा। इस हवाले से ये बात है कि कुरान का तर्जमा जब हम पढ़ेंगे तो ये अल्लाह की चिट्ठी है जो आसमान से आई है, और हर मुसलमान के नाम है। ये सिर्फ मौलवी साहब के नाम नहीं है, हर कलमा पढ़ने वाले के नाम आसमानी चिट्ठी है। जब कुरान का तर्जमा हमारा बच्चा हमारी औरतें, हमारे मर्द सब पढ़ेंगे और आवाम के अंदर अवेयरनेस आएगी कुरान के हवाले से, तो इंशाअल्लाह सूद के खिलाफ भी नफ़रत पैदा होगी। और हम हुकाम बाला को यही कहते हैं कि सूद अल्लाह रसूल से जंग है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो नासूर, ऐसा नासूर है और ऐसा माफिया है जिसकी वजह से आवाम के अंदर ये बेरोज़गारी और महंगाई और ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। अगर ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म की जाए और इसके लिए ख़ुद छापे मारे जाएँ, ये बड़े बड़े मिनिस्टर जो हैं वो घुस के बैठे हुए हैं ऐसी कमरों में, वो बाहर निकल के छापे मारें और लोगों को पकड़ें। जिस तरह अमीर मोहम्मद ख़ान ने बहुत से लोगों को पकड़ा, एक्सपोज़ किया, और उससे क्या हुआ कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म हो गई तो आवाम खुशहाल होगी। अच्छा, आपके नज़दीक कसूरवार कौन है, ताजिर या हुकूमत? इसमें असल में अल्लाह ताला के कुरान से रोशनी ली जाए तो हर शख्स इसका ज़िम्मेदार है। मैं भी ज़िम्मेदार हूँ, आप भी ज़िम्मेदार हैं, हर बंदा, क्योंकि जब हम मुआशरा कहते हैं ना, मुआशरा में हम सब मौजूद हैं। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करें ताकि दुनिया में भी आवाम के लिए सुरखरुई का ज़रिया बने और आखिरत में भी इंशाअल्लाह उनके लिए निजात का ज़रिया बने। बहुत खूबसूरत बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी मोहम्मद रियाज। सर, कौन कसूरवार है इस महंगाई का और कैसे गुजारा कर रहे हैं? कसूरवार क्यों है? वक्त है जो हमें साथ नहीं दे रहा। इतनी सख्त महंगाई हो गई है कि हम आपको कुछ बयान नहीं कर सकते। कोई आदमी भी हो,
महंगाई के बारे में आप किसी से सवाल करें, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब आदमी यही कहेंगे कि बहुत मुश्किल हो गया। अब बताएं कि ये इसका हल कौन निकालेगा? कसूर किसका है? मैं समझता हूँ इसमें कसूर तो आवाम का भी है, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ये हुकूमत को चाहिए कि जो प्राइसेस हैं, कंट्रोल हैं, वो उसने खुद उस पर करना है। हुकूमत तो ठीक है अपना काम नहीं कर रही, क्या ताजिर या जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं इनको अल्लाह का खौफ नहीं, इनके बारे में क्या कहें? देखिए आपकी बात ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि जो 25% है ना माफिया, उनका सारी गिरफ्त शामिल है इस चीज़ में। जब तक वो ठीक नहीं होंगे उसमें इतनी देर तक बेहतरी नहीं लाई जा सकती। मैं फिर वो इसी पॉइंट पे आऊँगा, जो 50% आवाम है वो मिडल मैन है, जो 25% माफिया है उनका सारा कंट्रोल है। मैं मानता हूँ कि उनको इस चीज़ में बेहतरी लानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तलहा। तलहा, आप क्या कहोगे, गुजारा कैसे हो रहा है? महंगाई तो बहुत है, कैसे गुजारा कर रहे हैं? महंगाई कैसे, क्या कहते हैं, गुजारा बहुत मुश्किल है। काम है ही बिल्कुल नहीं है, बाज़ार में है ही काम नहीं है। जोड़ा 200 रुपये का लेके आते हैं, गाहक कहता है 150 लगाओ, 100 लगाओ, लेके जाते ही नहीं है गाहक। कोई नहीं खरीद रहा, कोई ख़रीदता ही नहीं है, फिर बड़ी मुश्किल से देना पड़ता है उनको, किसी न किसी तरह ऊपर नीचे करके। गुजारा है बहुत मुश्किल है यहाँ पे। कैसे गुजारा कर रहे हो यार? हम तो ये दरख्वास्त करते हैं इमरान खान साहब से कि महंगाई का कुछ सोचें, कोई बजट काम करें। महंगाई ज़्यादा है कम है, क्या हालात हैं? वो महंगाई तो वाकई ज़्यादा है, मगर बात यह है कि इस कौम का ज़मीर मुर्दा हो चुका है। ये उस सिर्फ इमरान खान का कसूर नहीं है, ये कसूर हमारा है। हम खुद चोर हैं, हमारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है। नाज़रीन, इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ। यहाँ की 12 मार्केट के नायब सदर शेर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है? महंगाई का कसूरवार कौन है, ताजिर, हुकूमत या कौन? हुकूमत है। ताजर किस तरह है? ताजर क्या करे? ताजर को एक चीज़ सस्ती मिलेगी सस्ती देगा, महंगी मिल रही महंगी दे रहा है। महंगी तो मिल रही दे तो रहा है मगर बिक नहीं रही। ताजर क्या करे उस पर? अवाम पीस रही है। हमारे पास पहले 5 सेलमैन थे, अभी एक भी नहीं है। काम नहीं है, किसको हम तनख्वाहें दें? काम हो तनख्वाहें दें, इनके भी सर्कल चलें, लड़कों के सर्कल ही नहीं चल रहे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद गुल खान साहब मौजूद हैं, जो बाड़ा मार्केट रावलपिंडी की एक बड़ी मशहूर मार्केट है, इसके प्रेसिडेंट भी हैं, ताजिर रहनुमा भी हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा अरूज पे है, तो कसूरवार किसको समझते हैं? और एक बड़ा अहम सवाल है कि देखें, जब भी रमज़ान आता है, छोटी ईद आती है, बड़ी ईद आती है, तो हम लोग कहते हैं सीज़न आ गया है जी, बिज़नेस का सीज़न आ गया है। हम लोग अपने भाई को रिलीफ देने के बजाय, आसानी देने के बजाय उसको लूटते हैं। ऐसा क्यों है? जो काम हमारे मुसलमानों के होने चाहिए वो यहूदियों ने बना दिए हैं। क्योंकि यहूदियों के इलाके जाएँ ना, अमेरिका, यूरोप, कहीं भी जाएँ आप, वो 50% डिस्काउंट देते हैं, और हम लोग जो उनसे 50% लेते हैं, कमाते हैं, क्योंकि स्टॉक किया होता है सबने, ये माफिया ने सबने स्टॉक किया होता है। तो जुल्म की तो इंतहा होती है, क्योंकि गरीब आदमी और सफ़ेद पोश आदमी ये सारे पिस चुके हैं। और ये ताजर जो उनसे ना, ये हुकूमत की रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी टूट गई है। रीढ़ की हड्डी टूट गई है, 4 माह से रीढ़ की हड्डी टूट गई है, और माफिया बस अब जा रहा है। हम हुकूमत की आपसे बात करेंगे बिल्कुल, लेकिन हम अब पहले ताजिर बरादरी की बात कर लेना, हुकूमत पे भी आएंगे कि हम क्यों नहीं अपने भाई के लिए आसानी पैदा करते? क्यों हमने रमज़ान बरकतों का महीना है, अल्लाह से माफ़ी का महीना है, बिज़नेस का महीना नहीं है, हम अपने भाइयों को अजियत देते हैं क्यों? असल में हमारे सब मुसलमानों के साथ शैतान शामिल होता है। शैतान जोर पकड़वाता है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। कैसे इस सोच को बदला जाए? कैसे इसी सोच को बस अल्लाह और उसके रसूल का बयान और अल्लाह और उसके रसूल पे रास्ते पे चलें तो तब बदल सकते हैं, वैसे नहीं। ये लोग सारी जितने लोग हैं हमारे मुसलमान भाई, अल्लाह पाक इनको हदायत अता फरमाए, पहले तो मैं ये कहूँगा। और ख़ास कर इस मुल्क पे जो पाकिस्तान है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बना हुआ है, इस पे अल्लाह पाक ख़ास और ख़ास रहमत फरमाए, और मुसलमानों को अल्लाह पाक इत्तफाक अता फरमाए और हदायत अता फरमाए। आप क्योंकि ताजिर रहनुमा हैं, सदर भी हैं यहाँ के, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, क्योंकि आप ही के भाई हैं, क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं? क्या आप अपनी सतह पर इनकी हौसला शिकनी नहीं करते? आप इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेते हैं? आज भी हम बैठे हुए थे, हमारी कैबिनेट बैठी हुई थी, इसी पे बहस हो रही थी कि यार ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने जुल्म शुरू किया हुआ है, बर्पा किया हुआ है। मैं तो इमरान खान साहब से कहता हूँ, जो भी आपको नज़र आता है ना, आप उसके ख़िलाफ़ हो जाएं।
आपके साथ कोई खड़ा हो ना हो, आप इंशाल्लाह खड़े हो, अवाम आपके साथ है, हम ताजर आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अजमल बलोच साहब मौजूद हैं, जो आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं, लीडर भी हैं, ताजिर रहनुमा हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि महंगाई का कसूरवार कौन है? सर, बात यह है कि इस चीज़ के ना हम सारे ज़िम्मेदार हैं। देखें, हुकूमत इसलिए ज़िम्मेदार है कि हुकूमत वक्त का काम होता है कि कोई सिस्टम बना दे। आज तक हमें 70 साल हो गए हैं, हमें सिस्टम नहीं मिला है कि किस तरीके से हमारे रेट तय होने हैं, किस तरह से हमारा सिस्टम, कोई आपके सामने है सारा कुछ। अब कस्टमर किस तरह ज़िम्मेदार है कि हम फजूल की ख़रीदारी करते हैं। बाहर दुनिया में ऐसा नहीं होता, लोग ज़रूरत की चीज़ ख़रीदते हैं। यहाँ जब रमज़ान आता है, आप देखते हैं रमज़ान से 15 दिन पहले बड़ी बड़ी गाड़ियों की डिग्गियाँ सामान की भर के घर जा रही होती हैं, जिस तरह पता नहीं क्या मत आने वाली है। जब कोई चीज़ मंडी में आती है, उसकी कहीं से भी टमाटर अगर आ रहा है सिंध से, बलूचिस्तान से फ्रूट आ रहा है, तो उसकी जो तरसील होती है उस लिंक करता है पेट्रोल के साथ। जब पेट्रोल महंगा होता जाता है, उनका किराए बढ़ जाते हैं और वो चीज़ महंगी हो जाती है। जब नज़दीक से सप्लाई आती है तो वो सस्ती होती है, या वाफर मिकदार में जब सप्लाई सब्ज़ी या फ्रूट आ जाता है तो फिर भी वो सस्ता होता है। नहीं, हमने ये देखा है कि जब पेट्रोल की कीमत भी कम हो, चीज़ों में रिलीफ भी हो, तब भी चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं। नहीं, फ़र्क ज़रूर आता है। देखिए, आपने कई दफ़ा देखा, हम कई दफ़ा टमाटर डिस्कस होता है कि टमाटर 100 रुपये भी जाता है, टमाटर 50 रुपये भी होता है, टमाटर 20 रुपये भी होता है। ये क्यों हो जाता है? अब देखिए, सेब का इस वक्त मौसम नहीं है, बाहर इंपोर्टेड सेब पड़ा है और वो 700 रुपये किलो है। और भाई सेब ना खाएं ना यार। लेकिन जब जो लोग खाते हैं, अब बड़े होटलों में जाता है या बड़े बड़े घरों में जाता है, तो वो जब जाता है तो ज़रूर महंगा होता है। क्या ज़रूरत है हमें 700 रुपये? मैंने पूरा जब से ये सेब पाकिस्तानी ख़त्म हुआ मैंने नहीं खाया है। तो भाई बात यह है कि जब हम सब फैसला कर लेंगे, आपके पास बरतानिया की एक मिसाल मौजूद है कि अंडा महंगा हुआ तो वहाँ की सोसाइटी ने खाना छोड़ दिया तो सस्ता हो गया, पहले से भी सस्ता हो गया। नहीं, आपका क्या किरदार है? अगर जब दुकानदार, बहुत से दुकानदार, बड़ी शिकायत भी है आवाम की कि मंडी से सस्ती लाते हैं और यहाँ पे बहुत महंगी बेचते हैं, तो आप इनके इस हवाले से इनकी हौसला शिकनी क्यों नहीं करते? आप क्या एक्शन लेते हैं? मैं बता देता हूँ। देखिए, दुकानदार किराया भी देता है, दुकानदार टैक्स भी देता है। उसी के सामने अगर कोई रेडी वाला खड़ा है तो उसका रेट जब दुकानदार के बराबर होता है तो वो ज़्यादती होती है। उसको कंट्रोल किसने करना है? दुकानदार का और बाज़ार का। जैसे देखें ना, हमारे 3 बाज़ार हैं, हफ्ता जुमा बाज़ार है, इतवार बाज़ार है, मंगल बाज़ार है, हर जगह लगते हैं पूरे मुल्क में। वहाँ चीज़ सस्ती होनी चाहिए, वहाँ किराया 2000 रुपये, बिजली मुफ्त है, मंडी के रेट पे वहाँ चीज़ें बिकनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी रेट कोई चेक नहीं होता। दुकानदार का तो हम, क्या वजह? इसकी वजह ये है कि चेक नहीं है, CDA का कंट्रोल है। अब कोई प्राइस चेक करने वाला वहाँ होना चाहिए। जहाँ आम आदमी को रिलीफ मिलना है वो वहाँ मिलना है। दुकान पे जो आता है, अब दुकान का 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख आपको पता है किराया है, उसने किराया निकालना है, वो उसका रेट दुकानदार का और बाज़ार का रेट फ़र्क होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। अच्छा, ये बताएं कि रमज़ान जब आता है, छोटी ईद आती है, बड़ी ईद आती है, तो उस वक्त अचानक कीमतें आसमानों पे चली जाती हैं, वो भी क्या हुकूमत करती हैं? देखें, बात यह है कि जिस वक्त ख़रीदारी बढ़ जाती है, डिमांड, ये असूल पे जब डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोग ख़रीदार हो जाएंगे, चीज़ शार्ट होनी शुरू हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली पीछे से लोग महंगी कर देंगे। जो रिटेलर है ना, जिसकी बात मैं करता हूँ, जिसका मैं नुमाइंदा हूँ, रिटेलर जो है वो चीज़ महंगी मिलेगी महंगी देगा, सस्ती मिलेगी सस्ती देगा। यानी ये कसूर किसका है? हुकूमत के बाद किसका कसूर है? देखें, फैक्ट्री से सामान निकलता है ना, तो वो टैक्स भी देता है, वहाँ रेट भी तय होता है। इसी तरह मैं कहता हूँ, जब इंपोर्टर मंगवाता है, अभी आपने कहा कई चीज़ें, कपड़े की दुकानें पे आप जाएंगे, वही शर्ट जो 200 रुपये में लोगों को मिलती थी, अब वो 500 की क्यों हो गई है? गवर्नमेंट ने तमाम जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं, जो चाइना से माल आ रहा था, उस पर 25% ड्यूटी लगा दी है। जब 25% आप ड्यूटी लगा देंगे, वो महंगी हो जाएगी ना। पेट्रोल आपने 75 से एकदम 100 किया, जितनी तरसील होगी वो महंगा हो जाएगा। ये वो चीज़ें, जब कभी टैक्स लगता है, वो टैक्स भी आम पब्लिक पे ही जाता है ना। टैक्स किसने देना है? जिसने ख़रीदारी करनी है, इंक्लूड होता है। तो ये वो चीज़ें हैं, जब आप टैक्स का रेट बढ़ा देंगे, जब आप उस पर कस्टम ज़्यादा कर देंगे, तो चीज़ें महंगी होंगी। अजमल बलोच साहब, एक राय ये भी है कि जो माफिया है उसकी पुष्पनाई ताजिर रहनुमा करते हैं,
इसमें क्या हकीकत है? नहीं, ताजर किधर करनी है, सियासतदान करते, जो माफिया है सारा सामान तो उनके पास जमा होता है, वो आगे फ़रोख्त करते हैं, दुकानदार तो मजबूर होता है। ये देखें आप, जब हमारे सियासतदान इलेक्शन लड़ते हैं तो यही लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनके टेंट लगवाते हैं, उनको गाड़ियाँ देते हैं, उन पर अखराजात करते हैं। यानी इनको मजबूत करने में आपका कोई हाथ नहीं? हम गरीब लोग हैं यार, उधार पे माल लेने वाले लोग हैं, हम इनको कैसे मजबूत करते हैं? मतलब कोई हमें साबित करे कि हम कैसे इनको मजबूत करें। इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? देखिए, एक्शन इसलिए नहीं होता है, जिन्होंने एक्शन लेना होता है उनकी वो सपोर्ट करते हैं इलेक्शन में, वो कैसे उनके एक्शन ले लें उनके खिलाफ। अच्छा, महंगाई की एक बड़ी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है, तो इस हवाले से आपकी तंजीम क्या एक्शन ले रही है? देखिए, मेरी तंजीम, मेरा कोई दुकानदार ज़ख़ीरा अंदोज़ हो या मुनाफाखोर हो तो मैं ज़रूर उस पर बात करूं। देखिए, मुनाफाखोरी की जहाँ बात आती है, कंपटीशन है, मुनाफाखोरी नहीं हो सकती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, दुकानदार के पास तो पैसे नहीं होते, 80% माल उधार का होता है, हर रोज़ उसने कापी रखी होती है उनको पैसे देने की। अगर उसके पास पैसा पड़ो तो फिर तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ले। जो बड़े बड़े हम सुनते हैं कि छापा मार दिया, रेट हो गया, मुख्तलिफ फैक्ट्री से इतनी बोरियाँ निकल आई, कोई घरों से इतना सामान निकल आया, तो ये क्या है? वो दुकानदार तो नहीं है ना सर। मैं कौन है? मैं जिनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, वो ताजर है, वो रिटेलर। आल पाकिस्तान रहनुमा हैं। देखिए, अगर कहीं फैक्ट्री में चीज़ बन रही है, उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, वहाँ पे घरों में से भी तो माल बरामद होता है। देखिए, घरों में माफिया वालों ने रखा होगा ना जनाब, घर किराए पे लेके बड़े बड़े घर अगर माफिया के लोगों ने रखा है, ये किसी आज तक आया कि ये फलाना दुकानदार था, इसके घर से इतना सामान निकल आया, कभी की मीडिया ने दिखाया है? जो टनों के हिसाब से, वो भाई दुकान चलाने के लिए उसको माल उधार का मिल रहा है बड़ी मुश्किल से, वो टनों के हिसाब से किसी घर में कैसे रखेगा? नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ रोशदिल खान होती साहब मौजूद हैं, जो चेयरमैन मार्केट कमेटी हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटी के सरबराह भी हैं। हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नासिर साहब। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये बताएं होती साहब कि आज हमने विज़िट किया इस्लामाबाद की सब्ज़ी मंडी का, छोटी रेडी है या बड़ी दुकान है या किसी भी जगह पे हमें रेट लिस्ट नज़र नहीं आई, कहीं आवेज़ा नहीं थी, क्यों? आप अगर नेक्स्ट टाइम कभी विज़िट करें, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे इन्फॉर्म करके करें, लेकिन अगर आप करें और या आप अभी थोड़ी देर में अगर चले जाए, तो मैं अगर आपके साथ प्राइस मजिस्ट्रेट या इंस्पेक्शन टीम का कोई मेंबर लगा दूं, तो जहाँ जहाँ आपको रेट लिस्ट नज़र नहीं आई, वो हर बंदा अपनी बोरी के नीचे से रेट लिस्ट निकालेगा और 15 मिनट के अंदर आपको पूरी मंडी में रेट लिस्ट मिलेगी। हमारी बदकिस्मती ये है कि जो बंदा रेट लिस्ट पे अमल दरामद नहीं कर रहा, उसके पास एक ही एक्सक्यूज़ है कि जी रेट लिस्ट नहीं मिली, रेट लिस्ट देर से आती है, रेट लिस्ट आती नहीं है। रेट लिस्ट डेली सुबह 6 बजे इशू होती है। हमने एक प्रॉपर हमें तो कहीं नज़र नहीं आई। सब मैंने अर्ज़ किया कि हर दुकानदार का, हमारी बदकिस्मती है, आप अगर बड़े स्टोर्स पे चले जाएं, जना सुपर, कोयसार, इन लोगों ने भी रेट लिस्ट लगाती ही होती है। और यही वजह है कि मेरा ख्याल है पिछले 3 महीने के दौरान 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुर्माना किया है हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान और मजिस्ट्रेट साहिबान। लेकिन देखें, आप कह रहे हैं कि कोई नीचे से निकाल लेगा, कोई जेब से निकाल लेगा, अवेज़ा क्यों नहीं है और आपका इस पर कंट्रोल क्यों नहीं है? देखिए, वंस अगेन के ये जो प्राइस इंस्पेक्शन है, इसके लिए बाकायदा लोग हैं, एसी साहिबान है, मजिस्ट्रेट हैं। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल कंट्रोल है। अच्छा, ये बताएं कि अब हम जब गए तो रेट लिस्ट तो नहीं थी, हर बंदा अपना अपना रेट में चीज़ों को बेच रहा था और एक आम आदमी मुश्किल में था, तो इस हवाले से आप क्या एक्शन कर रहे हैं? देखें, हमारे रीजन बने हैं, हमारे पास 8 असिस्टेंट कमिश्नर साहबान हैं। हर असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ 2 मजिस्ट्रेट हैं। हर एक मजिस्ट्रेट के साथ 4 से 6 लोग हैं टाइगर फोर्स के, 2-3 लोग हैं टास्क फोर्स के। प्रॉपर मॉनिटर होता है चीज़ें। हाँ, हर रेडी पे, हर ठिए पे, हर दुकान पे हर वक्त बंदा नहीं खड़ा किया जा सकता। डेली 1-2 दफ़ा इंस्पेक्शन होती है, मुख्तलिफ अफसर छापे मारते हैं, जो लोग अमल दरामद नहीं करते उनको जुर्माने किए जाते हैं। आम जो शॉप्स वाले हैं, रेडी बान हैं, वो ये क्यों कहते हैं कि आड़ती पीछे से रेट ज़्यादा लगा रहा है और आम मार्केट में रेट 3 गुना बढ़ जाता है, वो क्यों? आपको फिर मैं दावत देता हूँ, किसी दिन हमारी एक्शन आप कवर कर लें, रात की कर ले, दिन की कर ले, सुबह की कर लें। प्रॉपर गवर्नमेंट का एक तरीक़ेकार है, एक मैकेनिज्म है। हाँ,
कुछ दिनों से हमारे साथ प्रॉब्लम ये, इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, 2 साल से हमारा बॉर्डर बंद है, हमें इंडियन चीज़ें बहुत सस्ती पड़ती थी, आती थी, जिन चीज़ों की शार्टेज होती थी वो वाया लाहौर आ जाती थी। अफ़गानिस्तान में हालात अच्छे नहीं है, अफ़गानिस्तान से टमाटर आता है और जब वो इस्लामाबाद पहुंचता है मौसम ख़राब है तो वो हमारे ऑक्शन से पहले पिघल चुका होता है। टिड्डी दिल की वजह से पंजाब की फसलें हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। इस वक्त हमारे पास मानसेरा से टमाटर आ रहा है और कोयटा से आ रहा है, उस पर कास्ट ऑफ मूवमेंट इतनी है, उस पर कास्ट ऑफ शिफ्टिंग इतनी है कि आप वो चूँकि ऑफ सीज़न है, नॉर्मल पंजाब का टमाटर ख़त्म हो चुका है। आम जो ख़रीदार है वो शिकायत कर रहा है, शिकवा कर रहा है कि नाकिस क्वालिटी या रेट बहुत ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है? सब देखिए, अब बात फिर वही आ जाती, इस्लामाबाद में इतवार बाज़ार खुले हैं, हमारे फेयर प्राइस शॉप हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का, डिप्टी कमिश्नर पिंडी का एक ऐप है जिसका नाम है दुरुस्त दाम। ये ऐप है, ये मार्केट कमेटी के अंडर सुपरविजन चल रही है, जिसका सरबराह है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद। आप अपने मोबाइल में दुरुस्त दाम पे उसको करें, उस पर सरकार का जारी किया हुआ चेयरमैन मार्केट कमेटी की दरख्तों से एक प्राइस लिस्ट है जो पूरे इस्लामाबाद के लिए एप्लीकेबल है। उस रेट लिस्ट पे आपको जो चाहिए वो आप वो चीज़ टच करें, हम विदाउट एनी डिलीवरी चार्जेस उसी सरकारी रेट पे वो सामान आपके घर पहुंचाते हैं। आपको मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी मैं फिर बात करूँ, आपको आपके घर पे आया हुआ सामान पसंद नहीं आता, आप हमें वापस कर दें, हम आपसे कोई सर्विस चार्जेस नहीं लेते, हम नाराज़ भी नहीं होते, हम आपको ये भी नहीं कहते कि ज़रूर लें। प्राइस लिस्ट की कमेटी के आप सरबराह हैं, प्राइस कंट्रोल लिस्ट कमेटी की, तो लिस्ट आप बनाते हैं? जी बिल्कुल, मैं बनाता हूँ। तो मुझे बताएं, जो लिस्ट आप बनाते हैं उस चीज़ पर आगे लोग उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता, अपने मनमानी रेट से क्यों बेच रहे हैं? देखिए ना, हमारे मुल्क में लोग ड्रग भी बेचते हैं। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई बंदा ड्रग क्यों बेचता है, जिस बंदे ने कसम खाई कि उसने बेईमानी करनी है तो उसने करनी है। मोती साहब ये बताएं कि जो छोटे रेडी बान हैं इनका क्या मसला है, इनको सीडीए क्यों तंग करता है और फिर कहते हैं कि पैसे लेके छोड़ दिया जाता है, मुख्तलिफ रेट तय हुए हुए हैं, इस हवाले से आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? नहीं साहब, ऐसे है, देखें इस्लामाबाद जब बना है और इस्लामाबाद के जो बाइलाज बने हैं उसमें लिखा है कि टांगा, रक्शा और रेडी इस्लामाबाद में नहीं होगी। ये वफाकी दारुल हुकूमत है, हम इसको लाहौर नहीं बनाना चाहते हैं। यहाँ फिर तो रेडियाँ ही रेडियाँ यहाँ पे। हजूर, मैं वही आपको कह रहा हूँ, लेकिन एक रेडी एक इलीगल एक्टिविटीज़ है। जब भी हम रेडी वालों के ख़िलाफ़ गाए बगाए कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन अगर हम इसमें ज़्यादा लाते हैं तो फिर साथ में प्राइम मिनिस्टर का ये भी हुक्म है कि जी चूँकि मुल्क में इस वक्त हालात ऐसे हैं, कोरोना की वजह है, परेशानी है, लोगों को तंग ना किया जाए। लेकिन ये तो देखें, ये तो फिर ब्लैकमेल हो रहे हैं कि उनका कोई फ़ैसला नहीं हो रहा, अब वो वहाँ खड़े होते हैं इस टेंशन में, या तो हमें निकाल दिया जाएगा, फिर उनसे पैसे लिए जाते। नहीं, देखें मैं आपको बता दूँ, कोई पैसे नहीं लेता। मैं गो कि मैं हर बात को कह रहे हैं, मुझे खुद बताया रेडी बानों ने कि हमसे कोई 2000 लेता है, कोई 1000, कोई 500, सब के अपने अपने रेट हैं, इंतज़ामिया के लोग भी और यहाँ पे जो इंस्पेक्टर हैं वो भी और सीडीए के लोग भी लेते हैं। साहब मैं फिर देखें ना, अगर अब ये गलती इसलिए गलत बयानी है, मार्केट कमेटी सब्ज़ी मंडी फ्रूट मंडी के अंदर सीडीए का कोई अमल दखल नहीं है। सब्ज़ी मंडी फ्रूट मंडी में एमसीआई का कोई अमल दखल नहीं है। फिर वो सीडीए का नाम क्यों ले रहे हैं? साहब जिसका जो दिल करता है ले। देखें ना, मैं फिर वही आपको कहूँगा, आप आइए कभी, फ्रूट मंडी एसोसिएशन, सब्ज़ी मंडी एसोसिएशन, यूनियन और इनका आपस में एडमिनिस्ट्रेशन का एक फ़ैसला है कि किसी मेन रोड पे कोई रेडी वाला ट्रैफिक में खलल नहीं डालेगा, आने वाले ट्रकों के रास्ते में रुकावट नहीं डालेगा, आने वाली ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके बावजूद अगर कोई रेडी वाला ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए बगैर एक साइड पे काम कर रहा है, हम उसे नहीं छेड़ते। प्राइम मिनिस्टर का हुक्म है कि लोगों को सहूलतें दे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने होती साहब की, जो चेयरमैन मार्केट कमेटी भी हैं और इस सारे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि सरबराह हैं यहाँ पे, तमाम तर ज़िम्मेदारी इनकी है। इनका ये कहना है कि हम भरपूर कार्रवाइयाँ करते हैं, मॉनिटरिंग का निज़ाम यहाँ बड़ा सख्त है और जो भी नाकिस क्वालिटी देता है या रेट लिस्ट आवेज़ा नहीं करता, हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपने ताजिर रहनुमाओं की गुफ्तगू भी सुनी, अवाम की गुफ्तगू भी सुनी, दुकानदारों की भी और ज़िम्मेदारों की भी। अब फैसला आपने करना है। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।